Okay, welcome back once again to all my dear students. Today we are going to revise chapter number 3. Some topics are there which we are going to revise today. That first of all, that is ionization enthalpy, then electron gain enthalpy, then electronegativity, right? So all this and the shielding and the shielding effect. Okay, so let us start the revision of chapter number 2. The name of that, sorry, chapter number 3. The name of that chapter, that is a classification of element. Let us start. Chapter number 3, that is classification of elements. चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमको मालूम है पहले तो कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल. सो दैट इज 118 एलिमेंट्स आर देयर. Different scientists are there who has given the discovery of the periodic table. That first of all John Dobreiner, then Newland, then E.B. the Kahn-Courtois, then Dmitri Mendeleev, right? Then Lothar Meyer. So all are the different scientists are there who has given the discovery of this periodic table. Now here in the periodic table there are 4 different blocks are there: S, P, D and F. Right? S block element, that you all know, that group number 1 and 2. P block element, that is belongs to group number 13 to group number 18. D block element belongs to group number 3 to group number 12. And F block belongs to lanthanoid and actinoid series. Understand? Now, here there are different periodic trends is there in the properties of the element. Right? So, which are the periodic trends is there? So, first one, that is atomic radius, ionic radius, then ionization enthalpy, then electron gain enthalpy, then electronegativity. So all these are the periodic trends will be there, right? So let us see that periodic trends in the physical properties. First of all, first one that we are going to discuss about is a short way how to remember the particular things. First one is atomic or ionic radius, right? Now, what is atomic and what is ionic radius? First thing, then you have to know that it is very difficult to find out the atomic radius of the particular element, right? To measure the atomic radius of only single element, why? Individual atom, because here the size of the atom will be very small, right? So atomic radius can be measured with the help of X-ray or spectroscopic method. कैसे हम atomic radius measure कर सकते हैं? तो with the help of X-ray और with the help of spectroscopic method से हमको atom की radius मालूम पड़ेगी. But that is the average half value of distance between the nuclei of two atoms. Average half value. Remember, अगर ये atom है, for example अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये एक हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, एंड दिस इज द एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, और उसका हाफ जो आएगा तो वो क्या आएगी? दैट इज द एटॉमिक रेडियस. अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एटॉमिक रेडियस. एंड हियर अगर यहाँ हाइड्रोजन की बात करूँ तो उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होगी? तो समवॉट 48 पिकोमीटर, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, एज फॉर एग्जांपल इफ आई टेक हियर क्लोरीन, देन हियर n equals to 1 and n equals to 2, n equals to 3 also, here also n equals to 1 2 3. तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आए उसका हाफ डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर. So what is the atomic radius of chlorine atom? So atomic radius of chlorine atom, atomic radius chlorine atom, that is 198 divided by 2, so that is equals to 99 picometer. Understand? So this is how you can find out the atomic radius. Now we are going to discuss about what? That is when we move from top to bottom and when we move from left to right in the period. How many periods are there? 7. How many groups are there? 108.
18 group is there, and how many element is there? 118. So 118 elements are arranged in 18 group and 7 period. In the first period, how many elements are there? पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2. दूसरे पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 और सेवंथ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है, राइट? अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूँ पीरियडिक टेबल में, सो व्हाट हैपन दैट द एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन द पीरियड द साइज विल बी डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस विल बी इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी इंक्रीज, बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज और आयोनिक रेडियस विल बी डिक्रीज। सो लेट अस सी हाउ इट विल बी डिक्रीज। चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट है। पीरियड 2 कौन कौन से एलिमेंट है हमको मालूम होना चाहिए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट? और इसका एटॉमिक नंबर कौन सा है? 3, देन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अंडरस्टैंड? मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसकी क्या आएगी? 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5. So all these are the electronic configuration of the element belongs to group period number 2, right? क्या देखो, अब लिथियम है तो n equals to 1, तो ये देखो इसका n equals to 1 और n equals to 2, यहाँ पे n equals to 1 और n equals to 2, यहाँ पे n equals to 1 और n equals to 2, यहाँ पे n equals to 1 n equals to 2, n equals to 1 n equals to 2, n equals to 1 n equals to 2, n equals to 1 n equals to। ये देखो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम ही रहा ना, 1 2 है, 1 2, राइट? बट यहाँ पे न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है यहाँ पे कितने होंगे? 3, तो यहाँ पे कितने होंगे? 4, यहाँ पे कितने होंगे? 5। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज। क्या इंक्रीज हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस प्रोटॉन, राइट? And as the positive charge will be increased, then the outermost orbit electron is more attracted towards the nucleus. इनके बीच में जो attraction होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, और अगर attraction increase हुआ, so that's why we can say that the size will be decrease. Understand? So that's why when we move from left to right, we can say that the atomic radius or ionic radius will be what? Decrease with the increase in the atomic number. Understand? And अगर हम ग्रुप की बात करें, चलो ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ये ग्रुप नंबर 1 है, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम। चलो सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा? तो 11। तो ये n equals to 1, n equals to 2 and n equals to 3, राइट? इसका 19, तो n equals to 1, ये 2, ये 3 और ये 4। Understand? So when we move from top to bottom, then the atomic or ionic radius will be increased, right? But when we move from left to right in the period, the atomic and the ionic radius will be decreased because the effective nuclear charge will be increased. That's why the outermost orbit electron is more attracted towards the nucleus. ये बात आपको मालूम होनी चाहिए. Understand? So all this is about the atomic and ionic radius, right? पहले ये देख लीजिए.
अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि Na और Na प्लस एंड Cl एंड Cl माइनस, यहाँ पे देखो तो दिस इज द पैरेंट एटम, राइट। तो यहाँ पे Na का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 11 ही है, पर इसमें प्रोटॉन कितने हैं 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10। यहाँ पे प्रोटॉन 10 है पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, सॉरी प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 11 पर इलेक्ट्रॉन 10, राइट। अभी देखो, अभी यहाँ पे किसकी साइज ज्यादा होगी, तो ये हियर वी कैन से दैट द साइज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आयन will be less as compared to that of its parent atom, क्योंकि इसकी साइज Na प्लस की साइज क्या होगी तो कम होगी, किससे Na से। और यहाँ पे the size of the negative charge ion will be more than that of its parent atom। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन 10 ही है और पॉजिटिव प्रोटॉन कितने हैं 11, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए 17 है, ये भी 17, तो प्रोटॉन कितने होंगे 17 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17, अंडरस्टैंड। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Cl माइनस में क्या होगा, कम होगा, एंड दैट्स व्हाई द साइज विल बी मोर। जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है उसकी साइज क्या होगी ज्यादा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलो देख लो, चलो अब दूसरी बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अभी देखो what you understand about the ionization enthalpy। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। It is denoted by delta IH, right? किसको बोलते हैं, the minimum energy required for the formation of positive ion from the gaseous neutral atom by receiving or by removing the electron, that is called the ionization enthalpy। I can write down, if you want to write down the definition, then the minimum amount of energy is required for the formation of positive ion from a neutral gaseous atom by removing the electron, that is called the ionization enthalpy। यहाँ पे देखो कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1 1s2 2s2, राइट। अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको मैं क्या बोलूंगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। To remove the first electron, that is called the first ionization enthalpy. To remove the second electron, that is called second ionization, and to remove the third electron, then you can say it is a third ionization enthalpy, right? यहाँ पे देखो ये n equals to 1, n equals to 2, n equals to 1, n equals to 2, right? यहाँ से अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ पीरियड में तो क्या होगा कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनके बीच में। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो अगर मुझे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है तो यू रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज होगी। और व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियड देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज। क्यों, क्योंकि साइज ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है। तो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट इज वेरी इजी टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, राइट। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि अगर डेल्टा आई पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए और उससे भी ज्यादा एनर्जी तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए भी चाहिए। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, क्या बढ़ेगा, राइट। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे ना
वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और जैसे भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उतने अट्रैक्शन भी बढ़ा, और अट्रैक्शन आउटर सॉलिड का इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बढ़ता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। सो दिस दैट थिंग्स यू हैव टू नो। नाउ यहां पे देखो कि सम डेविएशन विल बी देयर, सम नॉन लीनियरिटी विल बी देयर। यहां पे अगर ये 1s2 2s2 और ये 1s2 2s2 और 2p1 है, इन दोनों में से यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मुझे कम एनर्जी चाहिए, बट यहां से ज्यादा, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है ना वो कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर कोई भी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इससे उससे उसके बाद में जो एटम और एलिमेंट आता है उससे, राइट। तो यहाँ पे ये नॉन लीनियरिटी, एंड यहाँ पे भी ये नॉन लीनियरिटी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz, और ये 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz। ये दोनों देखो यहाँ पे ये ऑर्बिटल कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, और ये यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो यू रिक्वायर द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? तो नाइट्रोजन में, राइट। सो दिस टू प्लेस देयर इज अ नॉन लीनियरिटी विल बी अराइज फॉर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मुझे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखना है तो डेल्टा I H1 दैट इज फर्स्ट वन, व्हिच वन रिक्वायर द मोर एनर्जी? फ्लोरीन, then not nitrogen, not oxygen, not nitrogen, then oxygen, then comes carbon, then comes beryllium, then boron, and last one comes lithium. So this is the order of first ionization enthalpy, right? तो ये बात आपको दो जगह पे नॉन लीनियरिटी है, ये बात आपको याद रखनी है कि पहले तो एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और एक कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, राइट। चलो देख लो। चलो ये था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, किसको बोलते हैं। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके। चलो, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं? द इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट फुलफिल द नीड टू शील्ड और स्क्रीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कॉज द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, राइट। जितनी शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है उतना ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। सो आई कैन राइट डाउन हियर फर्स्ट पॉइंट दैट द इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन of an element fulfill the need of an element fulfill the need to shield or screen the valence electron, to shield or screen the valence electron, right, to shield and cause the decrease the attraction of valence electron towards the nucleus and causes what? Decrease attraction of what? Valence electron towards the nucleus, valence electron towards the nucleus, the
अंडरस्टैंड? यहाँ पे अगर we can say that if the decrease in ionization enthalpy of valence electron, it decrease the ionization enthalpy of valence electron, it decrease the ionization enthalpy of what valence electron, ये क्या कि अगर मुझे शील्डिंग और सीलिंग इफेक्ट है तो अट्रैक्शन कम हो गया, और अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो टू remove the electron in the outermost orbit you require the less amount of energy, that's why the ionization enthalpy will be decreased. Understand? ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए भाई. Shielding effect increase then the ionization enthalpy is decrease. I can say अगर shielding effect increase होगा तो ionization enthalpy क्या होगी? कम होगी, right? So if we discuss in the group, when we move from top to bottom, then what happened? That the ionization enthalpy will be decreased. So as the ionization enthalpy will be decreased, then we can say that the shielding and the sealing effect will be increased. Understand? So ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जहां पे ionization enthalpy decrease होती है, वहां पे shielding और sealing effect increase होगी, right? And that's why the outermost orbiting electron will be less attracted towards the nucleus. और अगर मैं ग्रुप पीरियड की बात करूं ना, तो पीरियड में अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो शील्डिंग और सीलिंग इफेक्ट इज नॉट increase, it remain as it is, and that's why we can say that the effective nuclear charge will be increased, and so the outermost orbit electron is more attracted towards the nucleus. इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं कि क्या कि when we move from left to right in the period the ionization enthalpy will be increased, and when we move from top to bottom then the ionization enthalpy will be decreased. Understand? चलो देखो. चलो नेक्स्ट पॉइंट that is electron gain enthalpy. What do you understand about the electron gain enthalpy? Yes, next that is the electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? That is denoted by delta EgH. Okay, अगर addition of electron to a neutral gaseous atom convert the negative ion which result the change in the enthalpy, और उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये न्यूट्रल गैसेस एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इट विल बी कन्वर्ट इन द नेगेटिव चार्ज आयन एंड इट विल रिलीज द हीट और एनर्जी, and such a reaction is said to be the exothermic, and that's why we can say that is called the electron gain enthalpy. उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? कि जो भी एलिमेंट इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इट कैन अटेन द स्टेबल ऑक्टेट स्टेट, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना. तो कौन सा एलिमेंट ऐसा है कि जो इजीली एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इट कैन अटेन द स्टेबल ऑक्टेट स्टेट? दैट इज द ग्रुप नंबर 17, दैट इज द हैलोजन एटम, राइट? क्यों? क्योंकि हैलोजन एटम क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इट विल अटेन द स्टेबल ऑक्टेट स्टेट. एज फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अंडरस्टैंड? तो हमको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी? तो हैलोजन. सो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि when we move from left to right in the period, then what happened? That the electron gain enthalpy will be increased, and when we move from top to bottom in the group, then the electron gain enthalpy will be decreased. Understand? क्यों? क्योंकि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, राइट? और अगर मैं इनर्ट गैस और नोबल गैस की बात करूं ना, तो नोबल गैस में तो ऑलरेडी द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? तो उसकी पॉजिटिव होगी. क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि अगर नियॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 10 है, राइट? तो इसकी 1s2, 2s2 और 2p6 तो है, और अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल में, राइट? एंड दस
ये ऑलरेडी स्टेबल था, अब ये क्या हुआ, हाईली अनस्टेबल, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की क्या होगी, पॉजिटिव, बट यहाँ पे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है कि एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे भी सम नॉन लीनियरिटी विल बी देयर, दैट इन द हैलोजन एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, राइट। देन इन द ग्रुप नंबर, अगर मैं उससे पहले का ग्रुप की बात करूं कि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप, राइट, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूनियम एंड पोलोनियम, right, and then after it comes your oxygen. So there is a certain non-linearity will be there in this electron gain enthalpy, right. इलेक्ट्रॉन गेन मींस इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज बना और एनर्जी रिलीज की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, तो हैलोजन एटम की। इट विल बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ किलोजूल पर मोल, अंडरस्टैंड। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, ओके। चलो देख लो एक बार। चलो लास्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसको बोलते हैं, कि जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट अगर उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, राइट। सो हियर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूँ, नेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मेजर, वो मेजर कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैन नॉट बी मेजर। इट इज डायरेक्टली एज्यूम अकॉर्डिंग टू द पॉली स्केल दैट द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज अ फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी एज्यूम की, तो 4, राइट, और उसका कोई यूनिट नहीं है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं है, और इससे हमको ऐसा पता चला कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल बी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी डिक्रीज, अंडरस्टैंड। तो ये सब हमने पढ़ा था, राइट। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देन शील्डिंग एंड सीलिंग इफेक्ट, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, right। Now let us see how easily you have to remember all these things। वन डायग्राम है, तो ये डायग्राम के ऊपर से आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो इसको। चलो देख लेते हैं वो डायग्राम। यहाँ पे देखो ये पीरियड टेबल है, राइट। ये पीरियड टेबल है, और यहां से हमको लिखना है, ये देखो, ये एस ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, राइट। और यहां से व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस द ग्रुप एंड दिस इज द पीरियड, अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूं तो क्या इंक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या रहेगा हियर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। फिर बाद में अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, राइट। फिर बाद में अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, राइट। अगर मैं टॉप से बॉटम में मूव कर रहा हूं तो क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज होगी, राइट। और फिर बाद में अगर यहां से लेफ्ट टू राइट मूव करना हो तो भी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। बॉटम से टॉप में जाना हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और बॉटम से टॉप में जा रहा हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा EgH, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो इंक्रीज। और
यहां से यहां पे जाना हो तो we can say that non-metallic character, this is non-metallic characteristics will be increased. Okay, और यहां से अगर मैं वापस आ रहा हूं तो metallic character will be increased. Metallic character, understand? So all these things, this is the easy way to remember that how when you move from left to right and top to bottom, which one is increasing, right? All these things we have discussed, and whatever the non-linearities are there, that also we have discussed. Okay, so up to here in this video it's enough. In the next video we are going to revise the chapter number 4, that is a chemical bonding. Okay, so thank you very much.